everyone, welcome back to my channel World of English with Anjali. In our previous video, I have told you about sentence, its definition, rules and basic structure. I have given you the information about the definition, rules and basic structure of sentence. And in that video also I have told you that I will give you something about sentence in my next video, and that will be the types of sentence and the structure of sentence. Okay, because the topic is too vast, क्योंकि ये टॉपिक थोड़ा बड़ा है, इसलिए हम इसे एक वीडियो में कवर नहीं कर सकते, इसलिए मैं इसे एटलीस्ट 3 वीडियोस में कवर करके आपको दूंगी. तो आज ये टॉपिक सेंटेंस का हमारा दूसरा वीडियो हम स्टार्ट करने जा रहे हैं. सो लेट्स स्टार्ट द टुडेज टॉपिक एंड इट इज सेंटेंस टाइप्स एंड फंक्शंस. इसका मतलब आज हम जानेंगे सेंटेंस के टाइप्स क्या है और वो फंक्शंस यानी कि वो काम कैसे करते हैं. दैट इज ऑल्सो इम्पोर्टेंट फॉर अस नो. सो इन इंग्लिश द सेंटेंस इज आर ऑफ 4 टाइप्स. इंग्लिश में सेंटेंस 4 टाइप्स के होते हैं एंड लेट अस नो अबाउट दोज 4 टाइप्स ऑफ सेंटेंस. द फर्स्ट वन इज declarative. The first type of sentence is declarative, which is also known as assertive. This declarative sentence is also known as assertive sentence. Now let me tell you what is declarative. Declarative means when we give information about anything or when we talk about facts. जब हम किसी चीज की इंफॉर्मेशन देते हैं, कुछ फैक्ट्स बोलते हैं, हमारे डेली सेंटेंस में ही हम इसे यूज भी करते हैं, तो उसे हम डिक्लेरेटिव कहते हैं. नाउ लेट मी गिव यू सम एग्जांपल. लाइक आई एम राइटिंग हियर दैट दिस इज माई कोट. I have given you the example here that this is my quote. It means I'm simply giving you the information. मैं आपको information दे रही हूँ कि ये quote मेरी है. And I don't want that book. It means I'm again giving you an information. I don't want that book. This is my quote and I don't want that book. These 2 sentences are actually declarative, means it is declaring the fact, it is giving you the information. ये आपको एक fact declare कर रहे हैं, ये आपको एक information दे रहे हैं कि ये quote मेरा है और मुझे वो book नहीं चाहिए. So these 2 examples are of declarative sentence. But there is one difference between these 2 examples. And actually those are also the part of declarative. वो जो एक डिफरेंस है जो इन दोनों सेंटेंस में है, वो एक्चुअली में डिक्लेरेटिव सेंटेंस का एक पार्ट है. तो लेट मी टेल यू, दिस सेंटेंस इज नोन एज affirmative sentence. Affirmative is also known as positive sentence. Affirmative sentence is also known as positive sentence. Positive sentence हम किसे कहते हैं? जब हमारे चीजों में एक हाँ होता है, when we say a kind of yes, एक सेंस में, एक मतलब में हमारे एक yes आता है, हाँ आता है, तो उसे हम affirmative या फिर positive sentence कहते हैं. And this sentence is known as negative. This is negative sentence. Now negative sentence is very easy to understand. What is negative? When we use no, not, never in our sentence, then that sentence is considered to be a negative sentence. जब भी हम अपने सेंटेंस में no, not या never यूज करते हैं तो वो हमारा नेगेटिव सेंटेंस होता है. अब यहाँ हमने इस सेंटेंस में not या नेगेटिव कहाँ यूज किया है? वो है ये वर्ड don't. Don't means नहीं. I don't want that book. मुझे वो बुक
नहीं चाहिए. It means this sentence is giving you an information of negation, an information of negativity. That's why this is the negative sentence, and these two are also a part of declarative sentence. ये affirmative और negative भी हमारे declarative sentence के ही part है. Okay, now let's move to our next type of sentence. Okay, I should say sorry because it's affirmative, not affirmative. My mistake. Now, second type of sentence is interrogative. Now, what is interrogative? Interrogative is also known as question sentence. Question word is very easy to understand. Interrogative is also known as question sentence. It means when we interrogate anything, when we ask anything, when we question anything. So these sentences are coming into the category of interrogative. जब हम किसी से सवाल पूछते हैं, क्वेश्चन करते हैं, इंटेरोगेट करते हैं, तो वो सेंटेंसेस हमारे इंट्रोगेटिव सेंटेंस में आते हैं. एंड नाउ लेट मी गिव यू अ सिंपल एग्जांपल ऑफ इट. इट इज where are you going? Here I have written an example, where are you going? And there are numerous examples we can take of question sentences. Are you coming for the dinner today? Okay, have you taken your lunch? Because questions are formed with many kind of words, and that I'll tell you later in my next, I can't say in my next video, but yes, some kind of next, when we'll talk about tense and everything, I'll tell you this thing also. But here we are talking only about interrogative sentences. It means when we ask the question. Now questions कितने टाइप्स के होते हैं? क्वेश्चंस के भी कुछ अपने टाइप होते हैं. जैसे हमारे डिक्लेरेटिव सेंटेंस के दो पार्ट होते हैं, एक एफर्मेटिव एक नेगेटिव, मीन्स एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव. वैसे हमारे इंटेरोगेटिव क्वेश्चंस के भी कुछ पार्ट्स होते हैं जो हम कह सकते हैं. पहला होता है WH क्वेश्चंस. WH क्वेश्चंस का आप देख सकते हो, मैंने एक एग्जांपल यहां दिया है. सेकंड इज चॉइस क्वेश्चंस. चॉइस क्वेश्चंस के एग्जांपल भी मैं आपके सामने अभी दे देती हूं. एंड द थर्ड वन इज yes no questions. These are the three parts: WH questions, choice question, and yes no question. These are the three parts of interrogative sentence. WH questions are those questions that starts with where. WH, where, why, what, when, who, whom, which. All these words start with WH, and when we use these words to ask the question, it becomes WH questions. जब हम इस WH वर्ड को यूज करते हैं क्वेश्चन पूछने के लिए, तो वो हमारे WH क्वेश्चंस बन जाते हैं. सेकंड आता है हमारा चॉइस क्वेश्चन. अब चॉइस क्वेश्चन किसे कहते हैं? जब हमारे पास आंसर में, जब हमसे जब कोई क्वेश्चन पूछा जाता है, तो उसके आंसर के लिए हमारे पास कुछ चॉइसेस दी जाती है. लाइक here I have written one example. Do you like vanilla or chocolate ice cream? So what is this? We are having choice in this question. हमारे पास choice है कि हमें vanilla आइसक्रीम पसंद है या चॉकलेट आइसक्रीम पसंद है. तो ये vanilla और चॉकलेट यूज करके हमने क्या किया इस सेंटेंस में? हमने अपने सामने दो चॉइस रख दी है जिनमें हमें एक चूज करना है. दैट विल बी द आंसर. सो दैट इज अ डिफरेंट थिंग. सो दिस can be considered as a choice question. Now coming to the third one, that is yes no question. Now yes no question I'll tell you more briefly. Yes no questions means the questions whose answers are only related to yes or no. ऐसे क्वेश्चन जिसके आंसर या तो आप सिर्फ yes में दे सकते हो या फिर no में, उसे हम yes no question. सिंपली आप कह सकते हो yes. लाइक इसका एग्जाम्पल है, Have you
टेकन योर लंच? हैव यू टेकन योर लंच? क्या आपने अपना लंच किया? तो इसका आंसर होगा इधर यस और नो। भाई किया है तो यस, नहीं किया तो नो। तो दीज कैन बी कंसिडर्ड एज यस नो क्वेश्चन। इसे हम यस नो क्वेश्चन कहते हैं, जिसका आंसर सिर्फ या तो यस होता है या तो नो। तो ये थे हमारे दो टाइप के सेंटेंस, वन इज डिक्लेरेटिव एंड द सेकेंड इज इंटेरोगेटिव। नाउ डू रिमेम्बर माई फर्स्ट क्लास ऑफ सेंटेंस इन विच आई हैव गिवन यू द रूल। मैंने उसमें एक रूल दिया है that every sentence ends with a punctuation mark, और उसमें मैंने 3 punctuations यूज किए थे। एक फुल स्टॉप था, एक क्वेश्चन मार्क था, एक एक्सक्लेमेशन मार्क था। तो इन दोनों में आप देख सकते हो मैंने 2 पंक्चुएशन ऑलरेडी यूज कर लिए हैं। एक है आपका फुल स्टॉप और एक है आपका क्वेश्चन मार्क। जो मेरी इस वीडियो को पहली बार देख रहे हैं, जिन्हें समझ में नहीं आ रहा है, वो मेरे प्रीवियस वीडियो को जिसको मैंने सेंटेंस के बेस पे ही बनाया है, वो आप देख सकते हैं, जिसके लिंक को मैंने डिस्क्रिप्शन में मेंशन कर दिया है। ओके, सो कमिंग बैक अगेन, मैंने आपको अपने प्रीवियस वीडियो में बताया था कि जो पंक्चुएशन मार्क्स होते हैं वो हम सेंटेंस को एंड करने के लिए यूज करते हैं। तो यहाँ हमने अपने डिक्लेरेटिव को फुल स्टॉप से एंड किया और इंटेरोगेटिव को हमने क्वेश्चन मार्क से एंड किया। नाउ अब हमारा बचा एक और पंक्चुएशन मार्क, दैट इज एक्सक्लेमेशन मार्क, एंड दैट पंक्चुएशन इज यूज्ड इन आवर थर्ड टाइप ऑफ सेंटेंस। वो पंक्चुएशन हमारे थर्ड टाइप ऑफ सेंटेंस में यूज होगा, एंड दैट टाइप इज एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। So now it is very easy to understand. Exclamatory sentence, third type. Exclamatory sentence. Okay. Before telling you about the punctuation, let me tell you what is exclamatory mark. Exclamatory sentence. Exclamatory sentences are those sentences which we speak in a sudden manner. Okay. Or we have a strong emotion while speaking that sentence. मतलब जब हम कोई सेंटेंस को, किसी वाक्य को अचानक से बोलते हैं, या फिर हम किसी सेंटेंस को थोड़े स्ट्रॉन्ग इमोशन के साथ बोलते हैं, उसे हम एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस कहते हैं। अब आप कहोगे कि नॉर्मल सेंटेंस और स्ट्रॉन्ग सेंटेंस, नॉर्मल इमोशन और स्ट्रॉन्ग इमोशन में डिफरेंस कैसे देखा जाए? तो चलो मैं आपको इसका एक एग्जाम्पल और दे देती हूँ। मैंने यहाँ पे एक एग्जाम्पल लिया, दिस ड्रेस इज ब्यूटिफुल, दिस ड्रेस इज ब्यूटिफुल। ओके, एंड माई सेकेंड एग्जाम्पल, वाओ व्हाट अ ब्यूटिफुल ड्रेस, व्हाट अ ब्यूटिफुल ड्रेस। Now, what is the difference between these two sentences? Let me explain you. आप ऊपर देखिएगा, मैंने यहाँ पे लिखा है टाइप्स एंड फंक्शन। टाइप्स तो आपको मैं दे रही हूँ, फंक्शन का मतलब क्या होता है मैं फिर आपको समझा दूं तो आपको यहाँ थोड़ा अच्छे से समझ में आएगा। फंक्शन का मतलब होता है कि ये जो टाइप्स हैं, डिक्लेरेटिव हो गया, इंटेरोगेटिव हो गया, एक्सक्लेमेटरी या फिर हमारा नेक्स्ट इंपेरेटिव, वो फंक्शन कैसे करता है, यानी कि वो काम कैसे करता है। तो यहाँ पे हम उसके फंक्शन को देखते हैं। यहाँ मैंने एक सेंटेंस लिखा है, दिस ड्रेस इज ब्यूटिफुल। तो इन दोनों सेंटेंसेस को अगर आप देखोगे तो दोनों में हमने एक ड्रेस को प्रेज किया है, हमने उसकी तारीफ की है कि ड्रेस सुंदर है। लेकिन इसमें हमने, इस सेंटेंस में हमने नॉर्मली कहा कि दिस ड्रेस इज ब्यूटिफुल, ये ड्रेस ब्यूटिफुल है। लेकिन यहाँ हमने क्या किया, हमने अपने प्रेजिंग वर्ड को थोड़ा स्ट्रॉन्ग बनाया, हमने अपने इमोशन को स्ट्रॉन्ग बनाया। जैसे हम कह रहे हैं वाओ व्हाट अ ब्यूटिफुल ड्रेस, तो इससे क्या हुआ, हमने तारीफ भी इसमें की है, हमने इस सेंटेंस में भी ड्रेस की तारीफ ही की है, बट हमारा जो इमोशन है तारीफ करने का वो थोड़ा स्ट्रॉन्ग था। दिस इज ब्यूटिफुल ड्रेस, वाओ व्हाट अ ब्यूटिफुल ड्रेस। सो you can see that I have used exclamation mark here in this sentence. ये हमारा जो वर्ड हमें अपने इमोशन को, स्ट्रॉन्ग इमोशन को एक्सप्रेस करने के लिए हेल्प आउट करता है, ये हम इन्हें इंटरजेक्शंस कहते हैं। जब भी हम अपने सेंटेंस में इंटरजेक्शन यूज करते हैं तो उस वक्त हम अपने एक्सक्लेमेशन मार्क को इंटरजेक्शन के ठीक बाद यूज करते हैं, ठीक बाद, और फिर बाकी के सेंटेंस को हम लास्ट में फुल स्टॉप से एंड कर देते हैं।
ठीक है। लेकिन अगर हम नॉर्मल ये सेंटेंस लिखें, वॉट अ ब्यूटीफुल ड्रेस, अभी मैंने कोई पंक्चुएशन यूज नहीं किया है, जस्ट लुक एट इट, वॉट अ ब्यूटीफुल ड्रेस। दिस इज ऑल्सो एन एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस, क्योंकि इसमें भी आप ड्रेस की तारीफ को थोड़ी स्ट्रॉन्ग इमोशंस के साथ कर रहे हैं। बस यहां आपने क्या नहीं यूज किया, ये इंटरजेक्शन को नहीं यूज किया। आपने इस इंटरजेक्शन को यूज नहीं किया है, इसलिए हम यहाँ एक्सक्लेमेशन मार्क हमारे सेंटेंस के एंड में यूज करेंगे, यानी कि हम इसे एक्सक्लेमेशन मार्क के साथ एंड कर देंगे इस सेंटेंस को। ओके, गॉट इट। तो वेयर वी आर यूजिंग इंटरजेक्शंस, we use exclamation mark just after the interjection and we end the sentence with a full stop. But where we are not using any interjection, but still our sentence is expressing a strong emotion, then at that place we use exclamation mark at the end to end a sentence. Got it? I hope this is clear to you all. Now coming to the fourth and the last type of sentence, and that is imperative. Imperative sentence. Now, again I'll remind you, this was the third punctuation that I have given you to end a sentence. ये हमने अपने थर्ड पंक्चुएशन में आपको भी यहाँ यूज कर लिया। अब आप समझ चुके हैं कि ये 3 पंक्चुएशन होते हैं जो हमारे सेंटेंस को एंड करते हैं। अब जब हम इम्पेरेटिव पे आते हैं तो पहले हम समझते हैं कि इम्पेरेटिव होता क्या है। इम्पेरेटिव सेंटेंसेस मीन्स टू गिव कमांड, टू हैव अ रिक्वेस्ट। ओके, तो जब हम कमांड करते हैं, ऑर्डर देते हैं, या फिर जब हम रिक्वेस्ट करते हैं, तो उस सेंटेंस को हम इम्पेरेटिव सेंटेंस कहते हैं। अब आप कहोगे कमांड, ऑर्डर, ये थोड़ा जानने के लिए आपको इजी होगा, बिकॉज हम हमेशा कहीं ना कहीं या तो ऑर्डर देते रहते हैं या फिर हम कहीं ना कहीं रिक्वेस्ट करते हैं। एंड इट ऑल्सो कम्स इन आवर डे टू डे लाइफ, इन आवर डेली लाइफ, ओके, विद आवर पेरेंट्स, विद आवर सिबलिंग्स, वी ऑल आर हैविंग दीज काइंड ऑफ सेंटेंसेस एवरी डे, बट वी डोंट कम टू नो अबाउट इट। हमें नॉलेज नहीं होता कि हम कर क्या रहे हैं। तो लेट मी एक्सप्लेन यू। Imperative sentence, as I told you, to give command or to give orders or to have a request. So like this, when we say, go and shut the door. Go and shut the door. जाओ जाके दरवाजा बंद कर दो. Bring me a glass of water. So what are all these things? These are things, orders, command. These sentences comes in the category of order and command. And when we talk about request, जब हम request करते हैं, तो request के लिए हम एक वर्ड बहुत अच्छे से यूज कर लेते हैं, and that is please. Now, let me tell you one thing that is very important about imperative. Imperative sentences end with full stop. Imperative sentences full stop से end होते हैं, but there is a but. जब हम रिक्वेस्ट की बात करते हैं, यानी कि जब हम प्लीज वाले सेंटेंस की बात करते हैं, तो उसमें हमारा सेंटेंस कभी कभी एक्सक्लेमेशन मार्क से भी एंड होता है, लेकिन कब? अब मैं इसका आपको डिफरेंस बताती हूँ। प्लीज गिव मी योर पेन। यहां हमने क्या लिखा? प्लीज गिव मी योर पेन, और आ एंड पंक्चुएशन इज फुल स्टॉप। हमने सेंटेंस को एंड किया फुल स्टॉप से। बट अगर इसी सेंटेंस को मैं ऐसे लिखती हूं, गिव मी योर पेन प्लीज, व्हाट इज द डिफरेंस? कैन यू टेल मी? हियर at the starting place I have used please and there is no comma and all. Okay, but here please is used at the and before that please I have used a comma. It means I am highlighting this please here. मैंने सेंटेंस पहले बोल दिया और उसके बाद मैं प्लीज यूज कर रही हूँ, ठीक है? तो इसका मतलब क्या हुआ? हम हाईलाइट कर रहे हैं उस प्लीज को। तो जब हम यहाँ इसे थोड़ा मीन्स फोकस कर, थोड़ा इम्फोसाइज कर रहे हैं, जब हम चीजों को इम्फोसाइज, जैसे मैंने बताया स्ट्रॉन्ग इमोशन, तो जब यहाँ पे भी हम प्लीज थोड़े इम्फोसाइज करके बोल रहे हैं, स्ट्रॉन्गली इमोशंस के साथ बोल रहे हैं, तो उसे हम एक्सक्लेमेशन मार्क के साथ एंड करेंगे। सो I hope these things were easier to understand you all. Okay, and here I am ending this, concluding this topic, sentence types and function.
Okay, and in my next video, I'll let you know about the structure of the sentence, and that will be the last video related to the topic sentence. So, if you find any kind of query, if you have any kind of query regarding this टॉपिक और एनीथिंग, एंड इफ यू ऑल्सो वांट, अगर आप ये भी चाहते हैं कि मैं पर्टिकुलर किसी टॉपिक पे आप लोग को पढ़ाऊं या किसी टॉपिक का वीडियो आप लोग को दूं, तो प्लीज आप लोग मेरे कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करिएगा. एंड इफ इट इज हेल्पफुल फॉर यू ऑल, देन प्लीज डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल. थैंक यू. जय हिंद.